Well, I'm actually very, very excited to be a part of this today. And I obviously support it from the bottom of my heart because being from the media industry myself, I do feel that if anyone gives a proper platform to talented individuals, I think it is a great service to the society. This is what I genuinely feel, and I think it's a great initiative. And this is basically, I think, taking Indian Idol to the level of Universal Idol. So I think it's a great initiative, and I wish all of you a lot of success. And is this your first season? Yes, yes. Okay, lovely. So we really look forward to having several seasons, and I hope, apart from musicians or apart from vocalists, Universal Idol at some point, also has enough competitions for other forms of art, where you can, whether it be acting, dancing, where you can actually promote a lot of new talent. I think that would be really, really Yes, good. that's true. Yeah. थैंक यू। और हम जनवरी 9th को और एक नया प्ले लॉन्च कर रहे हैं, नायिका भूमिका। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ 2026, एंड देन ऑफ कोर्स और भी है ऑन OTT which I will talk about later next time. नेक्स्ट ईयर क्या बिग बॉस कर सकते हैं आप, अगर आपको ऑफर आएगा तो आप? नहीं, ऑफर तो हर साल आते हैं, पर आई डोंट थिंक आई हैव द टाइम। Thank you so much. थैंक यू, थैंक यस, हेलो एवरीबॉडी। तो मैं बचपन से ही म्यूजिक का बहुत बड़ा एक मेरी आत्मा जो है, जो सोल है, वो पूरा म्यूजिकल है। चूंकि मैं बंगाली हूँ, तो बचपन में मैंने रविंद्र संगीत सीखा है। और ये जो प्लेटफॉर्म है यूनिवर्सल आइडल, आई थिंक इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म सारे देश विदेश में जो भी सिंगर्स है, जो एस्पायरिंग सिंगर्स है, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया टू शोकेस टैलेंट फ्रॉम इंटरनेशनल एंड फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। और आई विश सक्सेस टू द एंटायर टीम out here to bring this initiative and to reach out to all the audiences from national and international spheres. तो दो पंक्तियां मैं गाना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैं अभी म्यूजिक क्लासेस से आ रहा हूँ। मैंने हाल फिलहाल पिछले 4 सालों से मैं सुरेश वाडकर जी के यहाँ से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग ले रहा हूँ। करेक्ट। आई थिंक बहुत ही ये एक इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है इंडियन आइडल का, यूनिवर्सल आइडल। क्योंकि आई थिंक देश विदेश में बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं जिनको प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है। क्योंकि सब कुछ प्लेबैक सिंगिंग तो नहीं होता है, सब कुछ म्यूजिक वीडियोस तो नहीं होता है, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। और आई एम श्योर इतने सालों में हमने बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट को देखा है जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आगे बढ़ते जा रहे हैं। So I wish success to the entire team of Universal Idol, and may they keep roaring and roaring and scaling greater heights. Just 2 lines. ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thanks for joining here today for the press conference, which is the first and ever for Universal Idol. Universal Idol क्या है? कहाँ से इसका जन्म हुआ और कहाँ से ये स्टार्ट हुआ? So Universal Idol is an kind of a reality musical show which is happening throughout the globe. So there are different ideas which is happening in different countries, but Universal Idol एक ही होता ऐसा है जो हर कंट्री में, दुनिया की हर सिटी, हर कंट्री में होगा। अब तक 14 कंट्रीज कवर हो चुकी है, एंड अगले कुछ महीनों में और 4 कंट्रीज कवर होगी, एंड देयर विल बी अ फिनाले इन समवेयर अराउंड मिड ऑफ अप्रैल। There are people behind Universal Idol who have, given a bond to this kind of journey and this kind of ideal. I'd like to introduce our first chairman and CMD, Mr. Imtiaz Khan. Imtiaz bhai, can you on the stage?
So Imtiaz Bhai is been in the industry of real estate and interior for last 25 years. Suddenly he got a dream that he wants to do something for youth, for young. There are a lot of people coming into more into music, so we wanted something to come out with a different ideology. और उन्होंने यूनिवर्सल आइडियल एक नया मुकाम शुरू किया. We have another director, Mr. Abhay Parpani. Abhay, can you understand? So Abhay has been into hospitality and fitness industry for the last 9 years, and he is going to handle. He is a director for events and planning at Universal Ideal. So this is a team. Of course, even I am there, but that brief will be given by the name. We'll also have our most important personality, most important person for today's evening, our brand ambassador, Mr. Neil Nitin Mukesh. So I think he doesn't need any introduction. No. He doesn't need any introduction. He himself is a brand. He doesn't need introduction. We'd like Inkal Bhai to felicitate Neil. Thank you. Suddenly feeling very formal about this. Seriously. Thank you. So we have a short video, kind of a surprise for Neil. So can we have the AV please? Of course, I've known him for really long, but master entrepreneur, of course, a giant in the real estate business. He's into hospitality, he's into finance, and now he's joined Universal Ideal as their finance head, right, Ashish bhai? Director of finance. On me on that one, but this is fantastic. I mean, talking to you and being introduced by you in itself is a big honor. Thank you. Thank you so much, Ashish bhai. And needless to say, thank you first of all my fraternity and all the media family that I have out here for taking time out for this very important and joyous occasion in all our lives. Abhay, thank you so much. Parul, again, thank you. Imtiaz bhai, thank you so much for this honor and considering me worthy of this platform. It truly means a lot. Universal Idol, my journey started with Universal Idol, I think about a year and a half ago. It was fine, I mean, as long as they're fine. आप लोग कह सकते हैं, but मुझे लगा मैं कम से कम आप लोग को थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दे दूँ कि कहाँ से ये जर्नी शुरू हुई. तो शकील भाई जिनके हम इंतजार में हैं, फिलहाल अभी आए नहीं हैं, अभी आते होंगे. शकील भाई और मेरी मुलाकात हुई दुबई में करीबन ऑलमोस्ट 1-1.25 साल पहले. वहाँ पे मैं गया शकील भाई के लिए क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर मुकेश जी का सेंटनरी ईयर था, तो हम टूर कर रहे थे देश विदेश मुकेश जी को सेलिब्रेट करते हुए, और मेरी मुलाकात वहाँ पे उनसे हुई जो, और ये एक किस्म का एक जोन था, एक आइडिया था जो शकील भाई के दिमाग में था कि नींद हम सुनते आ रहे हैं ऐसे रियलिटी शोज के बारे में जो टैलेंट बस अपने देश में कॉन्सेंट्रेट करता है. मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कभी मौका मिले तो मैं करना चाहूँगा एक ऐसे बड़े पैमाने पे जो शो सिर्फ अपने ही देश के लिए नहीं बल्कि सारे देशों के लिए, सारे कंटेस्टेंट्स, क्योंकि उनका मानना है और शायद ये आप सब जानते हैं कि एक there's a slogan that goes by that music is a universal language, has no barriers, and I think that's so true too when you understand what universal language today means. Truly, it's remarkable जिस किस्म से इन्होंने ऑडिशंस किए हैं, कहाँ नहीं ऑडिशंस किए, 15 कंट्रीज में तो ऑडिशन कर चुके हैं ऑलरेडी, और फिर इस पैमाने पे ये शो बांधना है. और नॉर्मली क्या होता है कि हम टीवी एक रियलिटी शो देख लेंगे और टीवी पे हम कंटेस्टेंट्स को ऑलरेडी एलिमिनेट करेंगे. यहाँ लाइव ऑडिशंस होते हैं, करीबन 300-350 से ज्यादा ही आपके इनफैक्ट दिल्ली के ऑडिशन में 600 पार्टिसिपेंट्स थे. 600 पार्टिसिपेंट्स का बाकायदा ऑडिशन किया गया, उनको एलिमिनेट किया प्रॉपर राउंड सिस्टम से. तो मैं बड़ा ही प्रभावित हुआ, बहुत ही ज्यादा खुश हुआ ये सब देख के कि इस पैमाने पे ये लोग ये शो मानते हैं. फिर ऑब्वियसली वहाँ पे तो मैं गेस्ट के रूप से गया, बट इम्तियाज और शकील भाई का प्यार देख के थोड़ा मैं भी लालची हो गया. मैंने शायद प्रस्ताव रख दिया होगा जो इन्होंने पकड़ लिया कि मैं काश उम्मीद कर रहा हूँ कि इसका तो मैं ब्रांड एम्बेसडर होता, बट कहते हैं ना कि सही वक्त पे अगर कुछ सही मांगो तो शायद हो जाए. तो वही हुआ कि मैंने मांगा शायद ऊपर वाले से और अपने भाइयों से, और इन्होंने ये सपना पूरा कर दिया. इसमें बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच. और जी हाँ, यूनिवर्सल आइडल की जर्नी शुरू तो हुई है,
बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे ऐसे उम्दा कलाकार हैं, मैं कहूँगा देश में, हमारे देश में, विदेश, हर जगह, जिनको शायद कोई प्लेटफॉर्म मिलता नहीं। यानी आज अगर हम इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया की अगर बात करें तो शायद आप जिसको फॉलो कर रहे हैं आप उसके हुनर को देखेंगे, पर ऐसा बहुत सारा टैलेंट है हमारे हमारी कंट्री में। यानी एक बच्चा था, व्हाट वाज हिज नेम, इफ यू रिमेंबर, एक तो समर्थ वाज आउटस्टैंडिंग, गांव खेड़े का लड़का था, 11 साल का लड़का, और क्या उसने यानी तबला बजाते हुए ही sang also and हाँ there was a blind young fellow, but एक का नाम मेरे दिमाग में है, जुबान पे आ नहीं रहा, बहुत प्यारा नाम है, के साथ था। इनफैक्ट मेरे इंस्टाग्राम पे उसने मैसेज भी किया, याद आता मैं एकदम से बताता हूँ कि इतनी कहानियां सुना रहा हूँ आपको, शायद नाम से ऐसे नहीं लगेगा, बट इतने सारे लोग हैं, और मैंने दिल्ली में तो खुद पर्सनली देखा, इतने ऑडिशंस कर रहे हैं, और क्या टैलेंट था, एक में क्या क्या टैलेंट था। यानी बच्चा 12 साल का, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं किस गुरु से इसने तालीम हासिल की है। जब ये टैलेंट है, ये मंच है, और खासतौर पे ऐसा मंच जहाँ आपकी उम्मीद जगह है, तो क्यों नहीं। आई थिंक पर्सनली ये बहुत बहुत ज्यादा ही इनोवेटिव एक सोच थी, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि प्राइस मेरी बाकी में सच है। But jokes apart, I think all kudos to Imtiaz Bhai, to Shakil Bhai who is yet to come, and of course the entire team. Now we have Abhay, we have Ashish Bhai who joined the team, and looking forward to this. Thank you. So I think आप लोगों को एक brief introduction Universal Idol क्या है, कौन है इनके पीछे, and why Neil Bhai has joined Universal Idol as a brand ambassador. We've got the gist. We would like to say take some questions, मतलब press से कि अगर आप लोगों को कुछ questions है नील जी से या Universal Idol की कोई टीम से, तो please if you can ask. बैठेंगे तो शायद ही Should we sit down? I think that's right. Ji. You know, to what I know, I think 15 countries have already been covered. 15 countries already covered हो चुके हैं, तो और हर कंट्री में ऑडिशन राउंड के बाद करीबन 10 से 20 के बीच में पार्टिसिपेंट्स आप चुन रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, 6 फाइनलिस्ट्स हो रहे हैं आपके ऑडिशन। आई रिमेंबर दैट 6 फाइनलिस्ट हर कंट्री से जाएंगे फाइनल राउंड के स्टेज में, बट सीजन 1 में। और हाउ मेनी कंट्रीज आर यू कवरिंग? 18 countries. Wow, that's quite a feat. जी, इनका बड़ा अच्छा सवाल है कि मैं पहले तो इन्होंने तारीफ कर ली कि अकम्प्लिश्ड एक्टर को एक म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। यहाँ से अगर उठ के निकल जाऊँ, यहाँ तारीफ हुई है, थैंक यू। बट नहीं, देखिए मैं हमेशा मानता हूँ कि मैं कोई जज नहीं हूँ, मैं बिल्कुल जज नहीं कर पाता, मैं इंसान हूँ, और मेरे घर में मेरे पिताजी हैं, मेरी लेगेसी एक किस्म से बिलोंग करता हूँ मैं म्यूजिकल फैमिली को, जी हाँ। और बचपन से मैं अपने गुरुजी के साथ बैठकर प्रयास करता हूँ। इनफैक्ट मेरे तालु के गुरुजी पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी मेरे भी गुरुजी रह चुके हैं, तो पियानो बजाता हूँ, म्यूजिक का बहुत शौक है, बट मैं उस हिसाब से अपने आप को ट्रेन नहीं समझता जो कि जैसे मेरे पिताजी हैं या मेरे दादाजी रह चुके हैं। और मैं दिल की आवाज समझ लेता हूँ, सुरों का खपका हूँ, नहीं कहूँगा कि मैं बाथरूम सिंगर हूँ, तो थोड़ा मुझे नॉलेज है म्यूजिक के बारे में। तो बस मेरा क्राइटेरिया है 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इतने बड़े मंच पे अगर जा रहे हैं तो पहला तो स्टेज प्रेजेंस, आपका स्टेज प्रेजेंस, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी आवाज, आपका डिक्शन, आपकी आप जो गा रहे हैं बाकी दिल से गा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि टेक्निकल तो बहुत लोग गाते हैं, बट जो लफ्ज आपके मुंह से निकल रहे हैं क्या उसकी मतलब क्या उसका मतलब आप समझ के गा रहे हैं
या ऐसे ही गा रहे हैं, क्योंकि मुझे मुझे याद है, मैं एक थोड़ा एनेक्डोट देता हूँ। मैं अपनी फिल्म कर रहा था जॉनी गद्दार श्रीराम राघवन जी के साथ, और बहुत अच्छे से फिल्म शूट हो गई। यानी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई मुझे मिस्टेक लगे किसी एक शॉट में, कभी कभार एक शॉट में एक में शॉट सही हो गया, तो कॉन्फिडेंस था कि मैं यार एक्टिंग बड़ी अच्छी कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेन किया हुआ हूँ, श्रीराम सर खुद हैं, बहुत सारे मेरे जो पूजा लड़का सुनती जो मेरा सपोर्ट कर रही है और करते आ रही है, जिससे शूट आसान था। पर जब मैं डबिंग पे पहुंचा तब मुझे एहसास हुआ कि एक माइक के सामने वही चीज दोहराना, वही डायलॉग वापस बोलना कितना मुश्किल है। हम तो घर पे गाते हैं, मुकेश जी के गाने गाते हैं, किशोर दा का बहुत बड़ा फैन हूँ, किशोर दा के गाने मैं गाता हूँ, बट तब एहसास हुआ क्योंकि श्रीराम बहुत नाराज थे। उन्होंने कहा कि भाई ये फिर से डबिंग नहीं होगा, और उन्होंने कहा कि शायद तेरी आवाज मुझे डब करनी पड़ेगी किसी और से। और मैं डर गया, मैं कह रहा हूँ कि यार मैं मुकेश जी का बेटा हूँ, मैं नितिन मुकेश का बेटा हूँ, मेरी आवाज डब हो गई, और वो भी मेरी पहली फिल्म में करियर तो शुरू होने से पहले था। तो मैं बहुत नाराज था, और कहीं एक डिक्शन कोच वहाँ पे उस समय, उनके बारे में मेरे डबिंग आर्टिस्ट ने, डबिंग रिकॉर्डिस्ट ने मुझे उनका नंबर दिया, कहा कि नहीं तुम जाके एक बार उनसे मिल लो, शायद ये तुम्हारी मदद करें। तो मैं गया उनके स्टूडियो, उनका नाम है डॉक्टर वनमाली। डॉक्टर वनमाली एक नेशनल अवार्ड विनिंग स्पीच थेरेपिस्ट हुआ करते थे, अब हमारे बीच हैं नहीं, बट मैं उन्हें भगवान इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैं एक ही लेसन के लिए गया उनके पास, और मैं जब गया तो उनकी स्टूडियो बहुत छोटा सा एक 2x2 का एक स्टूडियो था, और मैं वहाँ पे बैठा, उनको मैंने अपनी कहानी सुनाई कि सर परेशानी हो रही है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी आवाज़ मैं निकाल तो रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है कि मैं लिपसिंग करके अच्छे से टेक्निकली एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, बट श्रीराम सर बड़े नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि जो तू कह रहा है उसका मतलब मैं दिल से नहीं कह रहा है। तो ऐसे सर ये दिल से नहीं कह रहे तो मतलब मैं समझा नहीं। तो उन्होंने बस मुझे एक माइक दिया और मुझे कहा कि ये कोई भी अपनी फिल्म का एक डायलॉग उठाओ और डायलॉग बोलो। कोई भी एक लाइन थी फिल्म की तो मैंने उनसे कही, और उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हें सुनना है तुम्हारी आवाज में। बस इस लाइन से मैं समझ गया कि उनका मतलब क्या था। उन्होंने कहा कि तुम्हारी आवाज कितनी अच्छी हो खराब हो, उन्होंने मुझे कितने बड़े बड़े सितारों के उदाहरण दिए जिनकी आवाज इतनी अच्छी है नहीं, बट आज भी लोग उनके बारे में जानते हैं क्योंकि जिस किस्म से वो अपना प्रोजेक्शन करते हैं या जिस किस्म से अपना डायलॉग होते हैं तो लोग वाकई में कनेक्ट होते हैं। तो शायद वो जहन में मेरे रह गया था, और शायद इस बार जब मैं आया तो शायद यही मेरे दिल और दिमाग में था कि मुझे इनकी आवाज के साथ साथ इनके दिल की बात भी सुननी है। आई थिंक दैट वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ जी, आपने तो गलत आदमी से ये सवाल पूछ लिया क्योंकि बहुतों के लिए ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है प्राइस मनी हो या कुछ हो। मैं मुकेश जी का होता हूँ, नितिन मुकेश जी का बेटा हूँ। मेरे लिए ग्रेटिफिकेशन सबसे ज्यादा है पहचान, और कोई मुझे उसके लिए इज्जत दे, मेरे काम के लिए, ऊपर वाले से बस यही शुक्राना करते रहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कम से कम इस लायक को बनाया कि कहीं पे भी जाऊं तो लोग पहचानते तो हैं। तो पैसे कमाने के जरिए बहुत सारे होते हैं जिंदगी में, और ऑफ कोर्स मैं तो बीच में बैठा हूँ, पर महारथी मेरे सामने यहाँ पे सब अव्वल नंबर के बहुत बहुत तोपदार प्लेयर्स हैं इस मार्केट में। रियल एस्टेट जायंट, रियल एस्टेट फाइनेंस जायंट, entrepreneurs, restaurateurs, etc. multiple businesses, और मैं एक कलाकार। तो हाँ, कभी-कभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स महसूस करता हूँ जब इन लोग से बात करना होता है। तो फिर इंटर करके पड़ेगा। but gratification मेरे लिए सबसे ज्यादा यही है कि लोग इज्जत दे, लोग प्यार दे, आप लोग इतने तादाद इतने नंबर में आ जाए हैं, इतना
खुश महसूस कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, उसके बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चारों प्रोड्यूसर्स से So ये फर्स्ट सीजन की प्राइज मनी इज रफली अराउंड अप टू $1 million. सो ये हमने प्राइज मनी रखी हुई है फर्स्ट सीजन की अप टू $1 million. सो ये इसीलिए रखी है कि ये कोई जैसे नील जी ने कहा कि ना किसी लोगों के लिए प्राइज मनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, किसी के लिए पहचान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पर जैसा उन्होंने कहा कि वहाँ पे 11 साल के बच्चे थे, 12 साल के बच्चे थे जो बहुत छोटे छोटे गाँव से आए थे, तो उनके लिए शायद से पहचान पर मोस्ट इम्पोर्टेंट थी कि प्राइज मनी। तो हमने प्राइज मनी इसीलिए रखी हुई है कि शायद से इनसे जो कोई उनका फ्यूचर बन पाए। सो दैट्स द रेटिफिकेशन फॉर दिस सीजन 1। वेरी वेल सेड, यू नो, पहचान इम्पोर्टेंट है और साथ साथ पैसे भी। आज का इनफैक्ट मेरी पहली फिल्म और पहला गाना ही ये था कि पैसा थे एक तमाशा देख। तो आज भी वही देख रहा हूँ कि जिसकी इज्जत होती है, जिसके पास जिसकी जेबें गर्म होती है, typically saying that, but सही कहा आपने कि बहुत छोटे छोटे गांवों से बहुत टैलेंटेड लोग, टैलेंटेड बच्चे हैं जो इस सपना देख के आ रहे हैं कि शायद उनकी जिंदगी सेट हो जाए। और शायद इस वजह से भी एक कारण था जो मैं जुड़ना चाह रहा था कि कम से कम अगर मैं जुड़ूं, मेरे जरिए कहीं तक तो पहुंचे, कहीं तक तो आवाज हम लोग शायद कर पाए, तो उस पर बहुत आवश्यक है। फिलहाल तो मैं आंसर करूँगा, आप ही करेंगे, आप कर लेंगे सर, आप कर लें। हाँ जी, YouTube पे लाइव आएगा जब ये शो, यू नो, बॉम्बे भी देयर आर 2 ऑडिशंस दैट गोइंग टू हैपन इन मुंबई एंड हैदराबाद, इंडिया में। दिल्ली ऑलरेडी हो चुका है, बॉम्बे एंड हैदराबाद वेरी सून इन अपकमिंग मंथ है। And we are going to tag with a lot of you know, other channels, I mean on social media platforms, So- and also the TV channels. right. I'll just take this up from here. So just to give you a little bit of an insight of what I think India's and of course in Shakil sir were planning on this one, with of course with your permission on finance. ये शो टेलीकास्ट टिपिकली टेलीकास्ट वाला है नहीं, अभी हम शूट करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि ऑडिशंस इतने बड़े पैमाने पे होंगे तो हर कंट्री के ऑडिशंस की क्लिप्स आप यूट्यूब चैनल्स पे देखेंगे जरूर। पर फाइनली इसका पूरा एक शो बनाने की हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद सारे कंट्रीज का एक फॉर्मेटिंग करते हुए अच्छे से एक बड़े पैमाने पे शो करते हुए कोई हमारे आज इतने सारे लीडिंग प्लेटफॉर्म से होंगे, तो वहाँ पे शायद एक 8 एपिसोड या 10 एपिसोड करते हुए, क्योंकि इतने सारे कंट्रीज हैं तो एक पूरी जर्नी बहुत है, बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे लोग हैं। और मैं तो चाहता हूँ, मैं तो वादा कर सकता हूँ कि लोग देखना चाहेंगे। तो मैं तो उम्मीद ही कर रहा हूँ कि शायद इस जर्नी में मैं भी हिस्सा हूँ। Like I said by you, so हम स्टेप बाय स्टेप शो आगे लेके जाएंगे एंड हम चाहेंगे कि इसके एपिसोड्स हम आगे जाके रिलीज करें। इतना तो हमारा यही टारगेट है कि सेमीफाइनल राउंड जो करना है वो रेडी करने वाला है फर्स्ट ऑफ यू वांट टू टेक 120 contestants all over जो जहाँ ऑडिशंस किए, सो वी वांट टू टेक ऑल ऑफ देम टू दुबई फर्स्ट एंड फाइनल टॉप 20 जो कराते हैं टॉप 20 राइट। टॉप 20 people we want to take them to some other Middle East country to the final round here. Let's see, this is our planning. फिलहाल में जो भी ऑप्शंस किए 3 countries को रेडी 3 countries को मैंने एक एपिसोड बनाना ये लोकल ऑडिशंस का, then we are going to take all all this contestant to Dubai और दुबई के बाद हम फाइनल करेंगे इसका जो डेटा होता है। Very much. And who's also a doctor. What do you have to say about universal? I am really happy to be here. I think music is the universal language of love. It connects people all over the world. So I think this is a beautiful initiative. And I'm so proud to be here and be a part of it and support it. And बहुत सारा talent और बहुत सारे लोग और you know ये सब music मिलाता है सबको. So I'm excited. You know, being a singer, we would love to hear a line from you.
line for me. Okay. I'll just sing a Punjabi line. गलियां गुजारा किवे रातां कालियां रंग दियां मैनू रुता प्यार वालियां तेरे बाजो जी नहीं लगदा मैं तो मर गया आजा सोनिया घर आजा सोनिया आजा सोनिया Thank you. 사이로 내게 좀 내려줘 dim은 나를 들어 저주 속으로의 샴마스타니 나를 호시 기에 잘 너를 처음 만난 순간 느꼈어 My love Thank you ये 자기가 이라 부카를 투제수 나대 원이투 Jimmy 아자 We together Jimmy 아자 Okay Over मिलवा एक सौ आपको उनके लिए मैं क्या गाऊं एक सौ गाने का इनके साथ क्या कहा ना बताओ अभी किसी ने हाल ही में पूछा अपने गाड़ी में कौन सा गाना सुनते रहते हैं हालांकि हूँ मुकेश जी का भोकल किशोर का बहुत बड़ा फैन है बट एक ही उनका गीत है जो मेरे दिल की बड़ी प्रिय है और वो गाना मैं गाते रहता हूँ आज कोशिश करता हूँ एक लाइन कुछ और गाना गा लेता हूँ बट किशोर का मेरे दिल में है मुकेश जी दिल में संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल यही रुक जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू Thank you. To have him on board, for this, आप क्या कहेंगे प्लेटफॉर्म के बारे में? यह बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमने बहुत सारे सिंगिंग रियलिटी शोज देखे हैं इतने सालों से और सिंगिंग रियलिटी शो से बहुत सारे कलाकार हमारे इंडस्ट्री को मिले हैं तो अभी यूनिवर्सल आइडल जो है वो पूरे दुनिया में लोगों को ढूंढ रहा है सिंगर्स को ढूंढ रहा है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सारी दुनिया के लोगों के लिए तो कम इनटू द लैंग्वेज एंड शोकेस देयर Thank you, Vishal. Thank you so much. और मैं सारी टीम को बहुत बधाई देना चाहूँगा and I think इस प्लेटफॉर्म की इतनी ज़रूरत है because nowadays जो यंग टैलेंट होता है उन्हें बस मौका चाहिए होता है एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है अपना टैलेंट दिखाने का and I think this is going universal so so many countries so many people are going to be participating young talent is going to be participating so I think it's a great platform और यहाँ से हमें fresh talent मिलता है. We see so many young talented people, who via this platform, get an opportunity to come in the limelight. कि हम तक वो पहुँच सके, आम आदमी तक वो पहुँच सके. So I think this is a great initiative, and I think we'll have a lot of good young talent coming our way, and we could find a lot of great talent with them. So big up to the entire team, big up to Avar and team. Wishing Universal Idol all the very best, and looking forward to the best of talent coming ahead, and we could give them all the love. Thank you. जबकि मेरी आवाज तो बिल्कुल सिंगिंग की जैसी नहीं है बट हाँ इस टीम के लिए मैं कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगी कि इन्होंने इतनी बड़ा टैलेंट अवार्ड खोला है शोज तो बहुत सारे नए लोगों को चांस मिलेगा एंड जहाँ तक मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग उम्मीद लगाते बैठे कि एक मौका मिले इसके बहाने उन्हें बहुत सारा मौका मिला एंड उन सब के लिए मेरी तरफ से गुड विशेस Congratulations to Universal Idol and प्लेटफॉर्म पर अच्छा कि वर्ल्ड वाइड टैलेंट्स इतने छुपे हुए हैं इंडिया में जिसमें है नेक्स्ट हाउस ऑफ सिटीज हम लोग जाते टैलेंट हंट करने के लिए
And there are so many good singers, they want one platform, and this is the ideal one, I think so, for them. And I look forward to get very good talented, like a singer, good singers, which is really required. And all the best to the Hindustan side. Thank you. वंडरफुल प्लेटफॉर्म एक्चुअली मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे आगे भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसकी वजह से हमें इतने सारे अच्छे सिंगर्स मिले नॉट फॉर इंडस्ट्री को लेकिन हम जब भी कोई गाना प्ले करके सुनना चाहते हैं तो हम सोचने के लिए ये गाना ये सिंगर तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और यूनिवर्सल आइडल इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तो और भी हमें अच्छे अच्छे सिंगर्स मिलने वाले हैं वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल टीम वैसे मैंने गुजराती एक्ट्रेस मैंने खुद भी गुजराती गाना गाया है तो आई नो मतलब गाने का क्या प्रभाव होता है मतलब हमें हर मूड हमारा अगर मूड कुछ भी चेंज करना हो तो गाना हमें कितना हेल्प करता है एंड वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन अगेन दिस यूनिवर्सल आइडल प्लेटफॉर्म और बहुत ही आगे बढ़े और अच्छे अच्छे सिंगर्स फ्यूचर्स में हमें मिले थैंक यू सो मच यूनिवर्सल आइडल जैसा कि आप बताया कि 18 कंट्रीज से नए नए टैलेंट आ रहे हैं और म्यूजिक तो the Canadians who music participate हमेशा से पसंद है. So I just wish them all the very best and congratulations to Universal Idol. Thank you so much. Universal Idol is promoting musicians. I am like promoter for music. I mean, I handle music in Balaji for almost 20 years. I still do A&R for them. And I think इतना talent है इंडिया में और म्यूजिक और डांस में स्पेशली और इतने कम प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एग्जिबिट करने का मौका मिलता है. So I congratulate the team and I think we see some amazing talent because I'm amazed with social media booming with so much talent. और जब एक real platform मिलता है तो I think it's bonus talent. Thank you so much. Thank you, Little. लॉन्च होता है और young talent को एक मौका दिया जाता है. बहुत अच्छा है हमारे जमाने में ये सब नहीं होता था नहीं तो अभी मैं भी माइक के साथ होती और यहाँ मुख्य अतिथि नहीं होती. So I'm so happy कि अब youngsters को बहुत सारे platforms मिल रहे हैं. Youngsters क्या है all age everybody is getting a platform and it's very good. Universal Idol खुद में ही बोल रहा है that it's universal and Neil is a brand ambassador so Neil से बेटा तो कुछ हो ही नहीं सकता and brand ambassador ऐसा होगा तो definitely उसके results भी बहुत अच्छे होने वाले हैं. I think Neil के साथ आपका एक स्पेशल बॉन्ड है because आप लोग के साथ एक पिक्चर भी बनाएंगे. हमारा मिलना उनसे रहेगा but any message you want to give to Neil? नील वही है राइट साइड में पर नील का मैं यही बोल सकती हूँ कि नील जैसा इंसान मैंने कोई देखा ही नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में. नील इज लाइक अमेजिंग नील आई एम जस्ट प्रेजिंग यू. नो दैट्स अ फैक्ट. जब सारी दुनिया आपका हाथ छोड़ देगी नील आपका हाथ पकड़ा हुआ आपको खड़ा मिलेगा. दैट्स इट. यस. Get a big round of applause for Neil for being here and उसने जो करा है बहुत ही अच्छा है. कुछ शब्द आप पार्टिसिपेंट्स को देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि आज फर्स्ट टाइम मैं सर को मिली हूँ. सर नील सर नमस्कार. बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे फर्स्ट टाइम मिलके और सच में आप बहुत हैंडसम हैं सीरियसली है ना. अभी तक तो फिल्म ही देख रहा मैंने तो और ये जिस तरीके का इनिशिएटिव उठाया गया है प्लेटफॉर्म बनाया गया है ये बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है. जिनके अंदर टैलेंट होता है उनको प्लेटफॉर्म की तलाश होती है. एक्चुअली जब उनको प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो कहीं ना कहीं उनके सामने एक रास्ता बन जाता है कि एक सक्सेस का रास्ता अपना टैलेंट दिखाने का रास्ता. और मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है. मेरी आवाज एक्चुअली ऐसी है नहीं थोड़ी सी अच्छी है बट आज थोड़ी सी बेसुरी लग रही हो क्योंकि गला बैठा हुआ है ना. और क्या बोलूँ बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर पार्टिसिपेट इसका हिस्सा होकर. बाकी सिंगिंग तो मुझे नहीं आती तो मैं भी गाना गाती हूँ बट जो है अपने सर है नील निकेश जी आपके फादर का पापा का एक गाना है जैसी करनी वैसी बनी. अच्छा तो अक्सर मैं जब भी सेवा करती हूँ सोशल वर्क करती हूँ तो मैं हमेशा वही गाना चूज करती हूँ. तेरा किया आगे आएगा सब कुछ है क्या जी बहुत ही अच्छा है. मैं चाहूंगी आप प्लीज मेरे साथ आके ये 2 लाइन बोले. ये वन ऑफ द
जो बोएगा वही पाएगा, तेरा पिया आगे आएगा, सब कुछ है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी. This is a great initiative by the Universal Idol, and I would thank everyone for joining us and appreciating everyone on this platform, especially me, sir, for being the face of that platform. And just best of luck, everyone, and thank you so much.